بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اون نیوز کے ساتھ میں ہوں میں نظارہ رو کرتے ہیں خبروں کا۔ سیالکوٹ سے کامران سرہری سے ایس ایچ او تھانہ ہیڈمرالہ خاور الطاف باجوہ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وہ اپنے فرائض کو بخوبی انداز میں انجام دینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے۔ شہریوں کے جان و مال کے تحفظ کے لیے ہر ممکن کوشش جاری رکھیں گے۔ رازداروں، لٹیروں، چوروں اور منشیات فروشوں کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ کسی بھی مجرم کو کسی قسم کی رعایت نہیں دی جائے گی۔ عوام کی مال جان کا تحفظ ہماری اولین ترجیح ہے۔ پولیس انتظامیہ اور شہریوں کے درمیان تفریق بس ایک جھجک کی ہے۔ شہری کسی بھی قسم کی شکایت کو درج کروانے ہچکچاہٹ محسوس نہ کریں۔ ہم ان کی خدمت کے لیے ہر وقت تھانہ میں حاضر خدمت ہیں۔ حیدرآباد میں وکلاء کا ایس ایس پی حیدرآباد کے خلاف سخت احتجاج۔ حیدرآباد کے وکلاء ایس ایس پی آفس میں سراپا احتجاج۔ ایڈوکیٹ علی رضا بزدار نے حیدرآباد تھانہ بٹائی نگر میں ایریا میں ایس ایس پی حیدرآباد کی گاڑی کو کراس کیا تو ایس ایچ او بٹائی نگر نے ایڈوکیٹ علی رضا بزدار کو اریسٹ کیا اور مقدمہ درج کر لیا۔ تفصیلات کے مطابق موجب بٹائی نگر تھانہ کی حدود میں ایک ایڈوکیٹ علی رضا بزدار نے ایس ایس پی حیدرآباد ڈاکٹر فرق لنجار کی گاڑی کو کراس کیا تو پولیس کو اچھا نہیں لگا۔ اس نے ایس ایس پی کو کراس کیا، جس پر ایس ایس پی حیدرآباد نے ایڈوکیٹ علی رضا بزدار کو گرفتار کرنے کا حکم دیا اور گرفتار کر کے پرچہ کاٹ دیا، جس پر آج حیدرآباد کے تمام وکلاء سراپا احتجاج بن کر ایس ایس پی آفس دھرنا دے کر مظاہرہ کیا اور پولیس کے خلاف سخت نعرے بازی کرتے رہے۔ ایس ایس پی حیدرآباد ڈاکٹر فرق لنجار نے وکلاء سے باتیں کرنے سے انکار کر دیا، جس کی وجہ سے وکلاء اور جذباتی ہو گئے۔ حیدرآباد کے وکلاء نے ایس ایس پی حیدرآباد اور ایس ایچ او بٹائی نگر کو ہٹانے کا مطالبہ کر دیا اور ایڈوکیٹ علی رضا پر داخل مقدمہ واپس کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ وکلاء کا احتجاج سے ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ پولیس خود کو بے بس محسوس کر رہی تھی۔ معلوم ہوا ہے کہ ایڈوکیٹ علی رضا بزدار کی کار کے کالے شیشے اور پولیس کا سائرن اور فینسی نمبر پلیٹ لگی ہوئی تھی، جس کی بنا پر پولیس نے ایڈوکیٹ علی رضا بزدار کو گرفتار کیا اور مقدمہ درج کر دیا۔ حیدرآباد سے ایس ایس پی جام شورو محمد ظفر صدیق چھانگا کا درگاہ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ کے سالانہ 773 عرس مبارک کے حوالے سے خصوصی دورہ۔ ایس ایس پی جام شورو محمد ظفر صدیق چھانگا کی جانب سے درگاہ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ پر حاضری دے کر انتظامات کا جائزہ لیا گیا۔ ایس ایس پی جام شورو کا درگاہ کے مختلف داخلی اور خارجی راستوں کی سیکیورٹی کا تفصیلی جائزہ لیتے ہوئے سی سی ٹی وی مانیٹرنگ روم کا بھی دورہ کیا گیا۔ اس موقع پر ایس ایس پی جام شورو کے ہمراہ ڈی ایس پی 7 ایس ایچ او 7 انچارج 157 اور انچارج درگاہ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ موجود تھے۔ ایس ایس پی جام شورو نے بتایا کہ درگاہ لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ کو 8 زونز میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ہر زون میں ڈی ایس پی رینک کے افسران کو تعینات کیا گیا ہے۔ پورے 7 شہر کے اندر 5000 سیکیورٹی فورسز کے جوان اپنے فرائض انجام دیں گے۔ ایس ایس پی جام شورو کی جانب سے درگاہ حضرت لال شہباز قلندر کے اندر لگے ہوئے سی سی ٹی وی کیمراز کا بھی جائزہ لیا گیا۔ انہوں نے بتایا کہ درگاہ کے اندر 240 کیمرے نصب ہیں، جن کے 2 کنٹرول رومز بنائے گئے ہیں۔ مزید انہوں نے میڈیا پر بتایا کہ یہ بلٹن میں خبر شامل کرتے ہیں۔ دی رپر سے اون نیوز کے بیورو چیف ضیاء اللہ کی اس رپورٹ کے مطابق ریجنل پولیس آفیسر مالاکانڈ شیر اکبر خان کا ضلع دیر بالا کے مختلف پولیس اسٹیشنز کا دورہ۔ پاک افغان بارڈر سے متصل پولیو ٹیموں کی سیکیورٹی انتظامات کا تفصیلی جائزہ۔ عوام کی جان و مال اور استاد پولیو ٹیموں کی حفاظت کے لیے خیبر پختونخوا پولیس تمام دستیاب وسائل بروئے کار لا رہے ہیں۔ آر پی او مالاکانڈ شیر اکبر خان ریجنل پولیس آفیسر مالاکانڈ شیر اکبر خان نے ضلع دیر بالا کے مختلف پولیس اسٹیشنز تھانہ براول اور تھانہ دیر سٹی کا دورہ کیا اور پاک افغان بارڈر سے متصل پولیو ٹیموں کی سیکیورٹی انتظامات کا تفصیلی جائزہ لیا۔ اس موقع پر ایس پی انویسٹیگیشن اکبر شنواری بھی موجود تھے۔ دورے کے دوران ڈی پی او دیر بالا نے ریجنل پولیس آفیسر مالاکانڈ کو ضلع کی مجموعی سیکیورٹی صورتحال، امن و امان اور پولیو سیکیورٹی کے حوالے سے تفصیلاً بریفنگ دی۔ ریجنل پولیس آفیسر مالاکانڈ نے ہدایات دیتے ہوئے کہا کہ خیبر پختونخوا پولیس ایک بہادر اور قربانی دینے والی فورس ہے، جس نے ہر وقت اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے عوام کی جان مال کے تحفظ کی خاطر کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ عوام کی جان مال اور انسداد پولیو ٹیموں کی حفاظت کے لیے تمام وسائل بروئے کار لا رہے ہیں۔ راولپنڈی سے رپورٹ شامل کرتے ہیں سید ساجد نقوی سے۔ مولا حسین علیہ السلام غازی عباس علمدار علیہ السلام کے یوم ولادت پر شاہپور سیدہ میں عظیم الشان جشن کا انعقاد۔ راولپنڈی ہر سال کی طرح اس سال بھی اڈیالہ روڈ کے علاقے شاہپور سیدہ میں ڈیرہ سادات پر مولا حسین علیہ السلام اور غازی عباس کے یوم ولادت کی مناسبت سے ایک عظیم الشان جشن کا انعقاد کیا گیا۔ اس پروکار تقریب میں علماء کرام، نعت خوان حضرات، معروف ذاکرین، قوال اور ہزار
हज़ारों की इज्जतमंदों ने शिरकत की। पीर सैयद हैदर गिलानी ने खुसूसी खिताब करते हुए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानी और गाजी अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम की जुर्रत व वफा को खराज तहसीन पेश किया। उन्होंने कहा कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का पैगाम अदल, कुर्बानी और हकानियत रहती दुनिया तक मशले राह रहेगा, जबकि गाजी अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम वफादारी और बहादुरी की अजीम अलामत हैं। महफिल में मरूफ नातख्वां शहबाज कमर फरीदी, सैयद फरहान अली वारिस और जाकर यासर रजा जंडोवी ने अपनी दिलनशीन आवाज़ों में नजराना अकीदत पेश किया। कवाली के बेताज बादशाह शेर मियां दाद ने अपनी पुरजोश कवाली से समावान दिया, जिस पर हाज़रीन वजद में आ गए। चलते हैं सक्कर की तरफ। खबर शामिल करते हैं ब्यूरो चीफ मुजफ्फर आबरू की। लखी गुलाम शाह के करीब नवा गांव रुक शहर में रईस केनाल के करीब नौजवान नदीम अहमद महर की नाशदर मालूम नहीं हो सकी। पुलिस का कहना है कि हम तफ्तीश करते हैं, जल्द हकीकत सामने आएगी। SK ह्यूमन राइट्स फाउंडेशन NGO की ज़ेरे एहतमाम सदर शुबा ख़वातीन सिंध आयशा जुनेजो की सालगिरह की तकरीब मुनक्किद हुई। तकरीब के दौरान मलक मारूफ को बतौर जनरल सेक्रेटरी ब्राई फाउंडेशन की तकर्री का भी ऐलान किया गया। मज़ीद इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं जुम्मन प्रताफी। SK ह्यूमन राइट्स फाउंडेशन NGO के ज़ेरे एहतमाम सदर शोबा ख्वातीन सिंध आयशा जुनेजो की सालगिरह की तकरीब मुनक्किद हुई। तकरीब के दौरान मलिक मारूफ को बतौर जनरल सेक्रेटरी बराए फाउंडेशन की तकरीर का ऐलान भी किया गया। तकरीब में साबिका पुलिस अफसर मंजूर कोराई, अब्दुल कदू शेख, नज़ीर अहमद सुमरो, पीर जानज़ेब बलोच, शाहिद जद, ज़ेबा बतूल, एडवोकेट जमान सुमर समेत मुख्तलिफ फ़िक्र के अफराद और वकला ने शिरकत की। तकरीब के दौरान आन न्यूज़ से गुफ्तगू में SK ह्यूमन राइट्स फाउंडेशन NGO के चेयरमैन एडवोकेट शुजात रसूल कोराई का कहना था कि रसूल कोराई, मैं एक प्रैक्टिशनर लॉयर हूँ। मलिर बार में मेरी प्रैक्टिस है। अपनी तंजीम का भी थोड़ा सा तारुफ करवाता चलूँ। हमारी तंजीम का नाम, हमारे इदारे का नाम SK ह्यूमन राइट्स फाउंडेशन NGO है, जो 2022 से अभी तक सरगर्म है। मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ हम कर चुके हैं, अभी भी कर रहे हैं। हमारी NGOs का जो मेमोरेंडम है, हमारी NGOs का जो मंशूर है, वो है सेहत पे, तालीम पे। जहाँ नाइंसाफ़ी होती है वहाँ हमारी कानूनी मदद होती है। उसी कानूनी मदद को मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि मैं एक प्रैक्टिशनर लॉयर हूँ, लातादाद केसेस फ्री ऑफ कास्ट जो आज भी कुछ मेरे पेंडिंग्स हैं, मलिर कोर्ट में चल रहे हैं, जो मैं विन कर चुका हूँ, उनका रिकॉर्ड मेरे पास अवेलेबल है। वक्तन ब वक्त जहाँ कहीं भी हमारी ज़रूरत होती है, हमारा इदारा वहाँ पे बिल्कुल पहुँचता है, काम भी किया है। जैसे सकरन नवाब शाह के बीच में 6 मर्डर हुए थे, तब भी हमारी तंजीम, मैं खुद पर्सनली भी वहाँ पे एक्टिव था। उसके बाद ये जो बाद में पेशावर में जो बम धमाके हुए थे, तब भी हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, प्रेस क्लब में भी पहुंचे थे। यानी कि कहने का मकसद ये है कि हम जहाँ जहाँ भी नाइंसाफ़ी होती है, हम वहाँ ज़रूर पहुंचते हैं। जुल्म के खिलाफ हमारा आवाज़ तब भी बुलंद था, आज भी बुलंद है। और आज जो हमारा इवेंट्स था, उस पर हमारी तंजीम साजी को मुकम्मल करना था। उसमें मुझे जनरल सेक्रेटरी की अशद ज़रूरत थी, क्योंकि जनरल सेक्रेटरी किसी भी इदारे का, यूँ समझ लें कि रीढ़ की हड्डी होती है। अगर रीढ़ की हड्डी कमज़ोर है तो नाम चल सकते हैं, नाम घूम सकते हैं, नाम फिर सकते हैं, नाम कुछ एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। जिस तरह की मुझे तलाश थी, जिस बंदे की, यानी कि जो मेरे दिल में एक ख्वाहिश थी कि ऐसा बंदा हो जो हमारे इदारे को भी चलाए, मेरा भी अपना राइट हैंड बने, वो आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारी नेक नियति थी, वो हमें मिला है। हमने उनको अनाउंस कर दिया है। मलक मारूफ साहब हमारे इदारे के डिविजनल जनरल सेक्रेटरी हैं। हम उनसे ये तवक्का करते हैं, हम उनसे ये मांगते हैं कि ये इदारा शुजात का नहीं है। ये इदारा हर उस बंदे का है जो इसमें एक्टिव है। ये इदारा हर उस बंदे का है जिसके अंदर ये जज्बा है कि मुझे काम करना है और नाइंसाफ़ी के खिलाफ हुसैनियत का किरदार अख्तियार करना है। हम सब हुसैनी हैं, तो हमें हुसैनियत के किरदार के ऊपर जुल्म के खिलाफ हमने अपना अलम लगाना है। तो मलक मारूफ साहब से हमारी उम्मीद है
کہ جتنی ہماری امیدیں ہیں اس سے 4 قدم آگے نکلیں گے۔ خبر شامل کرتے ہیں شرکپور سے تجمل بخاری کی رپورٹ کے مطابق فیروز والا حادثہ موٹر وے روڈ کے ساتھ لنک روڈ فیض پور کے پاس پیش آیا۔ تیز رفتاری کے بعد موٹر سائیکل سوار سریا سے لوڈ رکشے کے ساتھ ٹکرا گیا۔ موٹر سائیکل سوار کے بازو میں 4 عدد سریے آر پار ہو گئے۔ کال موصول ہوتے ہی ریسکیو 1122 کی ٹیموں کا فوری رسپانس۔ ریسکیو 1122 کی ٹیم نے زخمی نوجوان 22 سالہ علی اصغر کو ابتدائی طبی امداد فراہم کی اور جدید آلات کا استعمال کرتے ہوئے سریا کاٹ کر علی اصغر کو بحفاظت ہسپتال شفٹ کیا۔ چلتے ہیں سکھر کی طرف۔ خبر شامل کرتے ہیں بیورو چیف مظفر آبڑو کی سکھر پریس کلب میں پیکا قانون آزادی اظہار کا خون کے عنوان سے منعقد کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے مقررین رہنماؤں میں پیکا آرڈیننس کے آرٹیکل 26A کی شک کی پیکا آرڈیننس کے آرٹیکل 26A کی شک کو آزادی اظہار انسانی حقوق کے خلاف قرار دیتے ہوئے حکومت سے فوری طور پر متنازع شکیں واپس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ سکھر یونین آف جرنلسٹ کے زیر اہتمام منعقدہ کانفرنس میں مختلف صحافتی وکلاء، سماجی اور تجارتی تنظیموں کے رہنماؤں نے شرکت کی۔ سیمینار میں سکھر پریس کلب کے صدر آصف ظہیر لودھی، سکھر یونین آف جرنلسٹ کے صدر سلیم سہوتو، ڈسٹرکٹ بار کے جنرل سیکرٹری سندر چاچڑ، ایڈوکیٹ فاروق جتوئی، SUJ کے جنرل سیکرٹری جاوید جتوئی، SPC کے جنرل سیکرٹری امداد بزدار، شہزاد تابانی، سکھر سماج ریڈر کے صدر حاجی ہارون میمن، سندھ ویمن جرنلسٹ کی صدر سہرش کھوکھر، سنی تحریک سندھ کے نائب صدر محبوب سہتو، شہری اتحاد کے چیئرمین مولانا عبید اللہ بھٹو، سماجی رہنما ستار زنگیجو، غلام نبی گھانگرو، JUI رہنما اسامہ حلوی جی، روہڑی یونین آف جرنلسٹ کے صدر عبدالجواد عباسی سمیت دیگر رہنماؤں نے خطاب کیا۔ مقررین کا کہنا تھا کہ حکومت تنقید اور عوامی مسائل سننے کے بجائے ایسے قوانین بنا رہی ہے جو صرف حکمرانوں کی حفاظت کے لیے ہیں۔ خبر شامل کرتے ہیں نواب شاہ سے۔ ہمارے ڈویژنل بیورو چیف شاہ بخش جانیو کی رپورٹ کے مطابق کمشنر شہید بے نظیر آباد ڈویژن ندیم احمد آبڑو نے آج سول اسپتال سانگڑ، سمس اسپتال شہداد پور کے علاوہ ضلع سانگڑ کے مختلف پولیو فکس ٹرانزٹ پوائنٹس کا اچانک دورہ کر کے اسپتال میں مریضوں کو ملنے والی طبی سہولیات، صفائی کی صورتحال اور پولیو ٹیموں کا ریکارڈ چیک کیا۔ کمشنر نے سول اسپتال سانگڑ اور شہداد پور انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنس سمس شہداد پور کے دورے کے موقع پر مختلف وارڈز کا معائنہ کیا اور مریضوں سے صحت کے متعلق سہولیات کے متعلق معلومات لی۔ اس موقع پر کمشنر نے اسپتال انتظامیہ کو ہدایات دیتے ہوئے کہا کہ غریب عوام صحت کی سہولیات کے لیے سرکاری اسپتالوں کا رخ کرتی ہے، اس لیے عوام کو صحت کی طبی سہولیات فراہم کی جائیں گی تاکہ ان کو ریلیف فراہم کیا جا سکے۔ انہوں نے مزید کہا کہ صفائی نصف ایمان ہے، جس کو مد نظر رکھتے ہوئے اسپتالوں میں صفائی کی صورتحال کو بہتر بنایا جائے۔ کمشنر نے پولیو ٹرانزٹ اور فکس پوائنٹ کا دورہ کیا اور پولیو ٹیموں کے کام کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر کمشنر نے ڈپٹی کمشنر سانگڑ اور محکمہ صحت کے افسران کو ہدایات دیتے ہوئے کہا کہ ضلع میں پولیو وائرس کے پازیٹیو کیس کو مد نظر رکھتے ہوئے پولیو کے خلاف جاری مہم کو مزید مؤثر بنایا جائے تاکہ مہم کے دوران کوئی بھی بچہ پولیو سے بچاؤ کے قطرے پینے سے نہ رہے۔ کمشنر نے مختلف علاقوں کے دورے کے موقع پر گھر گھر جا کر بچوں کی فنگرز مارکنگ اور گھروں پر نشان چیک کیے اور پولیو ٹیموں کے متعلق والدین سے معلومات لی۔ بلیٹن میں خبر شامل کرتے ہیں ڈہر کی سے۔ ہمارے نمائندے علی رضا سومرو کی رپورٹ کے مطابق پولیس کی بڑی کارروائی۔ تھانہ ڈہر کی پولیس کی بڑی کامیاب کارروائی۔ خفیہ ذرائع کی اطلاع پر کارروائی کرتے ہوئے بھاری اسلحہ برآمد، ملزمان موقع سے فرار۔ پولیس برآمد شدہ اسلحہ چاول کے بو سے چھپایا گیا تھا، جس میں 3 عدد کلاشنکوف اور 300 کے قریب گولیاں اور 3 میگزین برآمد کی گئی۔ خفیہ اطلاع کے مطابق کارروائی کرتے ہوئے ڈہرکی کے قریب SHO کرب بادشاہ کی سربراہی میں سنکو روڈ حضور بخش کے گاؤں پر کی گئی ہے۔ پولیس برآمد شدہ اسلحہ کچے کے ڈاکو شر گینگ، مزاری گینگ کو سپلائی کیا جانا تھا، جس سے کوئی بڑی کارروائی کو سر انجام دینا تھا۔ پولیس فرار ملزمان کے خلاف پولیس علاقے میں سرچ آپریشن کر رہی ہے۔ SSP گوٹ کی سمیع اللہ سومرو کی سربراہی میں کچے کے سہولتکاروں کے خلاف پکے میں کارروائیاں کی جا رہی ہیں۔ پولیس نام بتا دیے، دونوں بھاگ گئے وہاں سے، جائے واردات کیونکہ اس طرح کی تھی۔ یہ بیسیکلی جو ہے یہ اسلحہ انہوں نے جو بھوسا ہوتا ہے چاول کے فصل کا، اس میں چھپایا ہوا تھا۔ پولیس پارٹی پہنچی تو یہ وہاں پہ جو زمینیں ہیں ان کا فائدہ لے کے بھاگ گئے۔ میں آپ کو ویڈیوز بھی اس کی دے رہا ہوں، آپ دیکھیں گے کس طرح کا علاقہ ہے جہاں سے یہ انہوں نے چھپایا ہوا تھا اسلحہ۔ وہاں سے پھر ہم نے یہ برآمد کرا۔ آپ نے کتنا اسلحہ جو ہے برآمد کیا ہے؟ کتنی گولیاں، کتنے میگزین، کتنے کلاشن کو؟ یہ اس میں 3 SMGs ہیں، کلاشن کوف اور 3 میگزین ہیں، اور اس کے علاوہ 300 بلیٹس ہیں۔ مجموعی طور پہ یہ بتائیں کہ یہ کتنا بڑا گینگ تھا، کتنے عرصے سے منظم تھا اور کتنا بڑا یہ اسلحہ
का सप्लाई जो है यहाँ पर कच्चे में कर रहा था, क्योंकि इस वक्त जो कच्चे के डाकुओं के पास असला है वो बहुत जदीद है। क्या ये सारा असला यहीं से वहाँ पर जा रहा था? जी बिल्कुल, ना सिर्फ यहीं से बल्कि और जगह से भी जा रहा है, उस पर हम काम कर रहे हैं। मगर ये है कि ये जैसे कि आप जानते हैं कि ये पक्के का इलाका है और डर की शहर के बिल्कुल करीब है, तो यहाँ पे कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता कि यहाँ से लोग ये जाके मज़ारी गैंग और शर गैंग को जाके ये असला सप्लाई करेंगे और असला प्रोवाइड करेंगे। तो उस पर हम अभी भी काम कर रहे हैं, हमारे आईटी की टीम भी काम कर रही है। उसके अलावा SHO कलाम अब्बास शाह और इसकी टीम वो अभी भी इस काम पे हैं। जो 2-4 इंफॉर्मेशन और भी हैं उन पर भी हम काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह जैसे वो भी हमारे नज़र में आएंगे हम उनको भी अपनी गिरफ्त में लेंगे। अच्छा सर, क्या इंफॉर्मेशन मिली है कि जो ये लोग हैं ये कच्चे के कौन से डाकुओं को ये असला सप्लाई करते, कोई नाम आए उनके? जी ये जो पता चला अभी तक की जो इन्फॉर्मेशन है उसमें ये है कि ये शर गैंग की जो रोटी कच्चा की है और उसके अलावा ये अब शामिल करते हैं हमारे नुमाइंदे शेख अली रजा ऑन न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक नामालूम गाड़ी की कार को टक्कर। रेस्क्यू हादसा शेखपुरा रोड किला भटिया के करीब पेश आया। रेस्क्यू हादसे में 2 अफराद जाँ बाग, 1 शदीद जख्मी। कार मसूल होते ही रेस्क्यू 1122 की इमदादी टीमों का फौरी रिस्पांस। रेस्क्यू 1122 की इमदादी टीमों ने जख्मी शख्स को फर्स्ट एड फराहम करने के बाद अस्पताल शिफ्ट कर दिया। रेस्क्यू 1122 की इमदादी टीमों ने जाँ बाग अफराद की लाशों को पुलिस के हवाले कर दिया। जाँ बाग अफराद की शनाख्त मुरातब अली वल सफ्तर हुसैन 56 साल और हाजी ज़का 46 साल से हुई। जख्मी होने वाले शख्स की शनाख्त अयान वाल्द उमर यकूब 33 साल से हुई। रेस्क्यू पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का UC3 व अवामी सहूलियात के हवाले से एहसन व मुहतसिन इकदाम। बुलंद पहाड़ की चोटी पर सीवरेज का काम शुरू कर दिया गया। कराची से हमारे एंकर पर्सन मोहम्मद आमर मौजूद हैं UC3 में, जहां पर वाइस चेयरमैन UC3 रहीम शाह से अवामी सहूलियात के हवाले से गुफ्तगू की जा रही है। जी मोहम्मद आमर, अपडेट कीजिएगा ऑन न्यूज़ के नाजरीन को इस हवाले से। मौजूद है UC3 पे, जहां पर आज वाइस चेयरमैन UC3 रहीम शाह की जानिब से अवामी खिदमत के हवाले से एक एहसन व मोहसिन इकदाम देखने में नजर आया। पहाड़ी के ऊपर जहां पर पत्थर खोदना मुश्किल काम है वहां पर पानी की पाइपलाइनें बिछाई जा रही है। इस टाइम वाइस चेयरमैन रहीम शाह हमारे साथ मौजूद है। अच्छा रहीम भाई, अक्सर अमूमन हमने जब आपका इंटरव्यू किया तो उसमें हमने ये बार बार कहा कि आपने अपनी UC3 में एक तरक्याती काम करवाएं, तो क्या समझते हैं कि जैसे कि देखने में नजर आ रहा है कि ये एक बेहतरीन इलाका बनता जा रहा है कैम खानी, तो मजीद क्या क्या इकदाम किए जा रहे हैं ताकि कैम खानी को एक मॉडल कॉलोनी बनाने में आप अपना एक अहम किरदार अदा कर सकें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आमिर, मैंने आपसे पहले भी 2-3 दफ़ा इस तरह इंटरव्यू में बोला है कि इंशाअल्लाह बहुत जल्द हमने अपने काम शुरू किए हुए। हमारे कुछ सीवरेज के मामलात हैं और कुछ पानी के मामलात हैं, इंशाअल्लाह वो हमारे बहुत जल्द कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद क्योंकि आपको पता है हमारी गलियाँ कच्ची हैं, पेवर ब्लॉक की इधर सख्त ज़रूरत है, कुछ रोड है वो भी हमने इंशाअल्लाह डाले में मंजूर किए हुए, क्योंकि अभी फ़िलहाल हम लोगों ने रोका इस वजह से क्योंकि गलियों में लाइनें सीवरेज की भी कम है, कुछ गलियों में पानी की लाइनें भी डलने वाली है। तो जैसे जैसे ये काम हमारे कंप्लीट होंगे इसके बाद हम इंशाअल्लाह अपने इलाके के खूबसूरती पर काम शुरू करेंगे और इंशाअल्लाह ये 5-6 महीने में इंशाअल्लाह ये सीवरेज और पानी के मामला हमारे कंप्लीट हो जाए। उसके बाद देखना हम गलियों में जो ना पक्के करना शुरू कर देंगे और अपने इलाके को देखने खूबसूरत मॉडल एरिया बनाएंगे ज़रूर इंशाअल्लाह। अच्छा रहीम भाई, माजी में देखा गया आपने यहाँ पर पुलिस नफरी के लिए बेहतरीन इकदाम किया। यहाँ पर कैम खानी पुलिस चौकी का क्याम आपने रोड के ऊपर किया, जिसकी वजह से ना बल्कि जराइम में कमी हुई, स्ट्रीट क्राइम में भी बेहद कमी रोनमा हुई। क्या इस तरीके से तालीम के फ़रोग के हवाले से यहाँ पर एक कॉलेज नहीं बनना चाहिए? बिल्कुल, ये तो अक्सर मैं अपने इंटरव्यू में भी कहता हूँ कि लोग जो है ना इस टाइम कॉलेज, यूनिवर्सिटियाँ, हॉस्पिटल, डिस्पेंसरियाँ, अस्पताल ये चीज़ें मांग रहे हैं और हम लोग अभी तक गटर लाइन में और ये पानी के लाइनों में और इसमें फंसे हुए। तो मेरे अक्सर अपने टाउन चेयरमैन से और लियाकत भाई से हमारी यही बात होती है कि मेरे इलाके में भी वो दिन इंशाअल्लाह मुझे अल्लाह दिखाएगा कि मेरे इलाके में कॉलेज होगा, यूनिवर्सिटी होगी, स्टेडियम होगा, डिस्पेंसरी होगी, मेरे आवाम के लिए प्ले ग्राउंड होगा, पार्क होंगे, लेडीज़ पार्क हमने बात की, क्योंकि आपको पता है हर घर में ख़ास तौर पे हमारे जितने भी लोग हैं इनको किसी को इस चीज़ का एहसास ही नहीं है, पता ही नहीं है। मैं ज़्यादा नहीं, मैं अपनी माँ की बात करूँ, उसको शुगर है, बीमार है, उसके लिए वॉक ज़रूरी है। हमारे पास इधर लेडीज़ पार्क नहीं है जिसमें हम लोग लेडीज़ के लिए पर्दा पार्क बनाएं ताकि वो शाम में सुबह में जाएं अपने लिए थोड़ा वॉक करें ताकि उनको जो है ना उनकी सेहत का ख्याल हो। हर बंदा अगर अपने घर में देखे तो ज़रूर उसके घर में ये मसाइल है, तो उस पर भी टाउन चेयरमैन से मेरी बात हो चुकी है। इंशाअल्लाह बहुत जल्द
एक लेडीज़ पर्दा पार्क भी हम कईम खानी में इंशाल्लाह बहुत जल्द इसका इफ्तिताह करेंगे, और ये अपनी जो माँ बहन है उनके लिए ज़रूर बनाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा रहीम भाई, अभी आपने स्टेडियम की बात की, तो माजी में MN पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ही कादिर खान मंदूखेल ने यहाँ पर स्टेडियम का इफ्तिताह भी किया था, मगर जहाँ पर अभी तक काम स्टार्ट नहीं हो सका, और सियासी मुखालफिन भी इस बात पे तनकीद करते, तो आप क्या इकदाम कर रहे हैं कि जल्द यहाँ पर स्टेडियम का क़याम अमल में लाया जाएगा? बिल्कुल, वो कादर खान मंदूखेल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का MN था, और उसने आपको पता है हमारे साथ राब्ते में होता था, काफ़ी काम हमारे किए और कर रहा था वो। असल में उसको टाइम भी आपके सामने 1 साल मिला, और उसके बाद जो मंसूबे मंजूर किए थे, फिर अभी आपको पता है एक पर्ची का MN आया हुआ है, तो ज़ाहिर बात है जब पर्ची का MN आएगा तो वो पर्ची के काम करेगा। तो अभी जो पर्ची उसके टेबल पे जाती है वही कामों पे वो काम करेगा, जो हमारे जेन्युइन काम थे, जो अवामी काम थे, जो हमारे अवाम का हक था, उन कामों पे उसने डाका डाला और सारे कब्जे किए और सारे बंद किए। तो वो आपको पता है माजी में उन लोगों ने बड़ा नुकसान दिया इस अवाम को, इस शहर को, और अभी भी वो वही कर रहे हैं। मतलब उनका काम जो है वो अपने काम में लगे हुए हैं, और हम अवामी लोग अवाम के लिए लगे हुए हैं, बस इतनी अच्छा रहीम भाई, काफ़ी जगहों पर आपने सुई गैस का काम करवाया, जिससे ना बल्कि इलाके में सुई गैस की फराहमी अमल में लाई गई, मगर मजीद भी इलाके में कहीं कहीं अभी गैस नहीं आ रहा, जिससे लोग काफ़ी परेशान हैं, तो इसके लिए क्या इकदाम कर रहे हैं? अब मेरा असल मसला पता है क्या, मैं अक्सर देखता हूँ ना फेसबुक में लोग एक ढक्कन लेके कंधे पे जाते हैं, वो किसी गडर के ऊपर रख के उसके वीडियो बना लेते हैं, सोशल मीडिया पे चला लेते हैं, और अपने अपने झाड़ू के साथ लगे होंगे, झाड़ू वालों के साथ खड़े हो जाएंगे, झाड़ू लगाते हुए मैंने बहुत बड़ा काम किया। अगर ऐसे मैं ये चीज़ें दिखाना शुरू करूँगा ना, तो सुबह से शाम तक मेरी यही चीज़ें चलती रहेंगी। आपको पता है वाटर बोर्ड की हमारी गाड़ियाँ आती, कचरे की हमारी गाड़ियाँ आती, हमारे कुंडी मैन आते हैं, हमारे झाड़ू वाले आते हैं, इस तरह हमारे लाइटों की गाड़ियाँ आती है, हमारे मुख्तलिफ काम चल रहे होते सारा दिन, गैस की गाड़ियाँ आ रही थी, मगर हमने अपने जितने पार्टी के वर्कर है, ताहिर है, मोहम्मद अली है, अहमद शाह है, गफार भाई, जितने भी हमारे दोस्त है पार्टी के वर्कर जियाले, इनको हमने इन चीज़ों में लगाया ना कि आप ये चीज़ें देखें। हमारा काम है ऊपर ऑफिसरों से दफ्तरों में जाके आपके लिए काम लाना, इलाके के लिए काम लाना, बाकी आप लोगों की मेहनत करें। हम वो लोग नहीं कि रिंग ढक्कन पे जो है ना हम वीडियो बना हमने एहसान कर दिया अपने कौम पे, हम कहते जो मसाइल है उनको काबू करे। जी बिल्कुल, हमारे साथ मौजूद थे UC3 से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की निशिस्त से कामयाब होने वाले वाइस चेयरमैन रहीम शाह, जो अवामी सहूलियत के हवाले से ऑन न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से गुफ्तगू कर रहे थे। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद आमिर, ऑन न्यूज़ कराची। अब खबर शामिल करते हैं बंगला गोगीरा से, जहां हमारे नुमाइंदे राशिद अली की रिपोर्ट के मुताबिक जिला उकाड़ा के नवाही गांव फतेहपुर शरीफ में अली मर्दान वेल्डिंग का काम छोड़कर गुलकारी की दुनिया में मारूफ हो गया। अली मर्दान ने गुलकारी का आगाज़ अपने चाचा को देखकर शुरू किया। हमारा नुमाइंदा फतेहपुर शरीफ में मौजूद है। जी राशिद अली, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त ज़िला उकाड़ा के नवाही गांव फतेहपुर शरीफ में मौजूद हूँ। अली मर्दान मौजूद है। आज हम इनसे जानते हैं कि किस तरह से इन्होंने गुलकारी का आगाज़ किया और आज किस स्टेज पे हैं। आज हम इनसे ही जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई? वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो अली भाई हमें आप ये बताइएगा कि गायकी में आपने कदम जो है वो कब से रखा और आपको शौक़ जो है वो कब से पड़ा? मुझे 1 साल हो गया है गायकी में शौक़ लगा था। मेरे चाचू गाते थे और मुझे उनको देख देख कर मुझे शौक़। तो गाना गाने से पहले क्या करते थे? मैं गाना गाने से पहले वेल्डिंग का काम करता था। अच्छा। जो कि मैंने 1 साल किया और फिर मैंने छोड़ दिया क्योंकि मुझे शौक़ ये लग गया था। और आपके जो उस्ताद मोहतरम हैं वो कौन है और वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, क्या नाम है उनका? मेरे बहुत ही प्यारे उस्ताद मोहतरम सिंगर मुजाहिद मंसूर मलंगी फ्रॉम जंग, मैं उनसे सीख रहा हूँ ऐसे। अच्छा अली भाई, हमने ये भी देखा है कि आपने 3 से 4 गाने जो हैं वो स्टूडियो में भी जाके गाने जो हैं वो गाए हैं। बड़ी एक प्यारी आवाज़ है आपकी, हमें भी कुछ आप जो है वो गाने सुनाएं। ढोले कोई ना तोड़ निभाइयां नाल गरीबां दे, उस 4 दिहाड़े लाइयां नाल गरीबां दे। ढोले कोई ना तोड़ निभाइयां, साथू तक पे आए सानू छोड़ गए, दिल सांवल साडा तोड़ गए, दिल सांवल साडा तोड़ गए। उस कीतियां है न वड्याइयां नाल गरीबां दे।
ਮਸਾਂ ਚਾਰ ਦਿਹਾੜੇ ਲਾਈਆਂ ਨਾਲ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ढोले कोई ना तोड़ निभाया। कैसे गाऊंगा? अच्छा, आप मुझे ये बताएं, अभी तो आप अपने उस्ताद की शागिर्दी में ही हैं। आपने अभी बताया है कि मुजाहिद मंसूर मलंगी के आप बहुत बड़े एक फ़नकार हैं जिनके आप ये शागिर्द हैं। कैसा महसूस कर रहे हैं आप अपने उस्ताद की शागिर्दी में जो गाने हैं आपने स्टूडियो में गाए? मैं बहुत अच्छा देख रहा हूँ कि क्योंकि जो मुझे फील हो रहा है ना कि जो मैं अभी गाने कर आया हूँ ना वो इंशाल्लाह मेरे हिट होंगे और बहुत ज़्यादा हिट पड़े। अच्छा, आप ज़्यादातर पंजाबी ही सॉन्ग गाते हैं या कोई सराइकी भी आप गाने गाते हैं? पंजाबी और सराइकी मिक्स। आपको कोई सराइकी में भी गाना आता है? उसकी तियां चलें आप हमें वो भी सुनाइए। वड्डियां नाल गरीबां दे गुरबत वेख के कंड कर गए ओ महल सदा नहीं रांदे ओदे चढ़दे ते लाहांदे ओदे चढ़दे ते लाहांदे कख भी कमला कम आवेंदन फुटियां सहजे गम आवेंदन फुटियां सहजे गम आवेंदन नहीं लजपाल छुड़ेंदे संगतां नहीं लजपाल छुड़ेंदे संगतां कंड करके नहीं जांदे ओदे चढ़दे ते लाहांदे ओदे चढ़दे ते लाहांदे। अली मर्दान, कोई आप हमें ये बताएं कि आपके इस फ़तेहपुर शरीफ में कितने लोगों ने अभी आपको सुना है और उनके व्यू आपके बारे में क्या हैं? जो अभी मेरे फ़तेहपुर जो है ना मेरा गांव सब ने सुना है और सब मुझे क्योंकि अच्छे से मुझे क्या नाम है उसका सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, आप मुझे ये बताइएगा कि आपके जो उस्ताद हैं, आपकी रेसल का टाइम क्या होता है? आप 24 घंटे उनके साथ रहते हैं, तो क्या कोई टाइमिंग आपने मुंतखब की हुई है? आप प्रोग्रामों में भी जाते हैं, तो आपको जो टाइम है वो कब मिलता है? हमें टाइम मिलता है जब हम प्रोग्राम से वापस आएँ तो तब हम रियाज़ करते हैं शाम को 3-4 बजे। ये हमारा टाइम होता है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आप सिर्फ अकेले उनके शागिर्द हैं या और भी उनके पास शागिर्द जो हैं वो ज़्यादा हैं? नहीं, माशाल्लाह हम 7 शागिर्द हैं। अच्छा, वो भी इसी तरह से आपके साथ ही जो है वो गाना गाते हैं? जी, वो भी मुझसे सीनियर हैं वो। अच्छा, आप मुझे ये बताइएगा कि ये गायकी बहुत मुश्किल होती है, आवाज़ का बहुत सुर ताल का बहुत ज़्यादा मेंटेन करना होता है, तो ये सारे प्रोग्राम को सारी आवाज़ को कैसे आप मेंटेन रखते हैं? से बहुत कोशिश की जाती है और तब हम जाके बहुत मुश्किल से इनको करते हैं। अच्छा, एक बहुत बड़ी बात है कि सरगम वगैरह आजकल जो है हर गुलकार जो है वो सरगम भी मतलब कि गाता है, तो सरगम पढ़ने में भी आपको कोई थोड़ी बहुत आती भी है या अभी आप सीख ही रहे हैं? अभी सीख रहा हूँ मैं। अच्छा, आप हमें कुछ सरगम के भी कुछ बोल जो हैं वो भी हमें। वो सरगम के 8 बोल होते हैं, सा रे गा मा पा दा नी सा, सा नी दा पा मा गा, सा रे गा मा पा दा नी सा, सानी दा पा मा गा रे सा। अली मर्दान मेरे पास इस वक्त मौजूद है। ज़िला उकाड़ा के नवाई गांव फ़तेहपुर शरीफ में अली मर्दान ने एक नई पहचान अपनी बनाई है सिंगिंग के हवाले से। मेरे साथ ही यहाँ के इलाके के कुछ लोग भी हैं, हम उनसे भी जानते हैं कि अली मर्दान के हवाले से वो क्या कहना। क्या बात है जी, बहुत प्यारा गाते हैं, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ इंशाल्लाह सपोर्ट करांगे, जिस हद तक रोई इंशाल्लाह ज़रूर करांगे। अली मर्दान के वालिद साहब भी मौजूद हैं, हम इनसे भी जानते हैं कि वो अली मर्दान के हवाले से क्या कहना चाहते हैं। जी भाई, बहुत खुशी होती है। पहले ये काम करता था वेल्डिंग का। अच्छा। तो मेरा एक भाई गाता था, तो उसको शौक़ था, वो ढोल पे गाता था, तो भाई के लिए मैंने गाना मंगवाया था। एक शायर के पास गया तो सरगोदा से लेके आया, तो उसने बोला कि यार अली मर्दान आप गाओ। इसने गाया, जब गाना इसके मन को भा गया तो कहता पापा मैंने तो सिंगरिंग करनी है। मैं कहा बेटा आप सीख लें। वो गाना किया शाइन स्टूडियो में सरगोदा करके, जब वापस आए तो इसका शौक़ बढ़ गया, कहता कि मैंने गाना ही गाना है। मैंने कहा ठीक है बेटा, आप ऐसा करें कि आप किसी के शागिर्द हो जाएं, आप किसी की भी चॉइस कर दें तो मुझे बता दें,
वो अली मर्दान कहने लगा कि पापा मैंने तो मुजाहिद मंसूर मलिंगा का शागिर्द होना है। तो फिर भाई के साथ बात की, बहुत अच्छा प्रोटोकॉल दिया मुजाहिद ने भी, तो अल्लाह पाक उसका और उम्र की तौफीक दे। बहुत अच्छा उसने हमें वेलकम किया, तो अभी सीख रहा है, बहुत खुशी होती है जी, क्योंकि मैं तो ड्राइवर हूँ, ड्राइवरी करता हूँ बिल्कुल जी। तो इंशाल्लाह आवाज़ भी ठीक है, मेहनत भी करता है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए खबर शामिल करते हैं जिला सबतपुर बलोचिस्तान से हमारे ऑन न्यूज़ टीवी चैनल के ब्यूरो चीफ जाफर खान बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक डेरा मुराद जमाली एपका एजुकेशन यूनिट के सीनियर रहनुमा बाबू वाहद बख्श कंडरानी एजुकेशन डिपार्टमेंट में अपनी मुद्दत मुलाजमत पूरी करने के बाद रिटायर्ड हो गए हैं। बाबू वाहद बख्श कंडरानी ने एजुकेशन में बतौर क्लर्क 36 साल खिदमत सर अंजाम दी। क्लर्क BPS 16 में रिटायर्ड हो गए। एजुकेशन यूनिट की तरफ से आज इन्हें रफ़दाई पार्टी दी गई। रफ़दाई पार्टी में एपका डिविजनल सदर अब्दुल्ला बलोच, जनरल सेक्रेटरी बाबू बरकत अली सामत, एजुकेशन यूनिट के सदर बाबू मोहम्मद आलम कंडरानी, उस्ताद मिठा खान रिंद, मुनीर अहमद मरी, मलक अब्दुल गफार सोलंगी, बाबू बरकत अली गोला, बाबू मोहम्मद यकूब मेंगल, बाबू हुसैन बख्श जुनेजो, बाबू मोहम्मद यूसुफ सासवली, अब्दुलनी कंडरानी, हाजी नूर हसन बगटी, मामा रसूल बख्श सोमरो, बाबू खुदा बख्श एरी, बाबू नियाजुल हक चतक, रईस कूड़ा खान हांझी, बाबू बशीर अहमद मेंगल, बाबू जमील अहमद सयाल, नवाज अहमद जदक, बाबू तैयब सयाल, बाबू दोस्त मोहम्मद अब्दुल हफीज़ बहरानी, सैयद रशन अली शाह, बाबू कंवल कमार, बाबू मोहम्मद इकबाल सयाल, नसीबुल्ला नुमान अहमद समेत दीगर ने शिरकत की। ब्यूरो चीफ अजताज कृषि की रिपोर्ट के मुताबिक शुजाबाद सियासी समाजी रहनुमा साबिक कौंसलर राव जाहद बाकर, साबिक चेयरमैन वापटा राव खालिद बाकर ने शुजाबाद इंसाफ प्रेस क्लब के सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए अपने मुश्तरका बयान में कहा कि कश्मीर पाकिस्तान की शारक है। अक़वाम आलम और बिलखसूस उम्मत मुसलमान को कश्मीर में भारतीय तसल्लुत और जुल्म सितम पर अपना किरदार अदा करना चाहिए। कश्मीरी अवाम कई दहाइयों से ज़्यादा की जंग लड़ रही है। हक खुद इरादियत कश्मीरियों का हक है। अक़वाम मुत्तहिदा कश्मीरियों की नस्लकशी पर खामोश तमाशाई बना हुआ है, लेकिन पाकिस्तानी कौम हमेशा अपने कश्मीरी भाइयों के साथ सीसा पलाई दीवार की तरह खड़ी है और कश्मीर की आज़ादी तक जदोजहद जारी रखेगी। इन्होंने मज़ीद कहा कि कश्मीर में भारतीय मुजालम पर दुनिया की खामोशी तशवीशनाक और काबिल मज़म्मत है। कश्मीर का हाल सिर्फ अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक कश्मीरियों की राय लेने से ही मुमकिन है। उन्होंने मज़ीद कहा कि भारत को कश्मीरियों को अपने मुस्तकबिल के फैसले करने का हक देना चाहिए। उन्होंने मज़ीद कहा कि मकबूजा कश्मीर में बुनियादी हकूक़ और आज़ादियों को बहाल करना चाहिए। इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों को रोकना होगा। ब्यूरो चीफ अजताज कृषि की रिपोर्ट के मुताबिक शुजाबाद ज़िला इंतजामिया की जानिब से अवामी खिदमत रेवेन्यू कचहरी से शहरी मुस्तफ़ीद डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली बुखारी ने रज़ा खाल में अवामी खिदमत रेवेन्यू कचहरी का इनेकाद किया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू मोहम्मद अबू बकर और असिस्टेंट कमिश्नर अब्दुल समी शेख और जाहिद इकबाल ने शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली बुखारी ने 100 से ज़ायद शहरियों से जायद की दरख्वास्तों पर फौरी रिलीफ फराहम किया। रेवेन्यू अवामी खिदमत कचहरी में तमाम रेवेन्यू अफसरान ने शिरकत की और दरख्वास्तों पर सुनवाई की। हर माह के आगाज़ में रेवेन्यू अवामी खिदमत कचहरी के ज़रिए अवाम को रिलीफ दिया जाता है। वज़ीर आला पंजाब के अवाम को रिलीफ दिया जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब ने अवाम के मसाइल ओपन डोर पॉलिसी के तहत हल करने का टास्क दिया है। तमाम रेवेन्यू अफसरान को बाकायदगी से कोर्ट वर्क करने की हदायत की है। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली बुखारी शहरों का रेवेन्यू अवामी खिदमत कचहरी में मसाइल हल होने पर हुकूमत को खराज तहसीन पेश किया। ब्यूरो चीफ अजताज कृषि की रिपोर्ट के मुताबिक शुजाबाद ज़िला इंतजामिया का शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के लिए तजावीज़ात के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन का आगाज़ कर दिया गया है। ताजर बरादरी नुकसान से बचने के लिए अज खुद तजावीज़ात का खात्मा कर दे। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली बुखारी, असिस्टेंट कमिश्नर सिटी अब्दुल समी शेख की सरबराही में रेलवे रोड और लोहा मार्केट में भरपूर ऑपरेशन किया गया। इस मौका पर भारी मशीनरी के जरिए पुख्ता तमीरात और शीट्स मसमार थड़े तोड़ दिए गए, जबकि क्रेन और ट्रैक्टर के जरिए दुकानों के बाहर पुख्ता तमीरात मौके पर तोड़कर सामान कब्जे में ले लिया गया। ऑपरेशन में जिले पुलिस, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और MDA के मुश्तरका टीमों ने शिरकत की। टास्क फोर्स ने शाहराह पर रखे खोखे सामान और तमीराती मटीरियल भी जब्त कर लिया। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी अब्दुल समी शेख ने 5 दुकानें सरबराह करके भारी जुर्माने भी आयद किए। वज़ीर आला पंजाब की हदायत पर तजावीज़ात के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रहेगा। गुंजान और तजावीज़ात वाले बाज़ारों में मरहलावार ग्रैंड ऑपरेशन किया जाएगा। अगले मरहले में छोटे बाज़ारों और मार्केटों का रुख करेंगे। ताजर बरादरी नुकसान से बचने के लिए अज खुद तजावीज़ात का खात्मा करे। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली बुखारी। डिस्ट्रिक्ट रोपड़ जहांगीर अली आबरू गोटकी डर सिंध शेख अलायंस के चेयरमैन एडवोकेट आसफ मीर शेख जिला गोटकी के मुख्तसर दौरे पर पहुंच गए, जहां उन्होंने मरकजी और जिले गोटकी की क़ियादत मोहम्मद जुमन शेख, मोहम्मद अली शेख,
फहीम अली शेख, खालिद हुसैन शेख, आबद अली शेख, अब्दुल शकूर शेख और दीगर ओहदेदारान सिंध शेख अलायंस घोटकी से अहम मामलों पर बातचीत की और ज़िला घोटकी की शेख बरादरी से अहम मुलाकातें की। घोटकी, खानगढ़, मीरपुर, मथालो, बागुडेरा, डहरकी, गोड, जाफर शेख और मुतली बरादरियों से मुलाकातें की और यकजहती का पैगाम दिया। ज़िला घोटकी की शेख बरादरी को एक दूसरे की बात सुनने और इत्तेहाद का मुजाहरा करने का अहम पैगाम दिया और एक ताकतवर कौम होने के नाते उन्होंने इस जगह से अपना नुक्ता नज़र पेश किया। जिस तरह सिंध में सबसे ज़्यादा ताकतवर कौम शेख कौम है, जिसका पढ़ा लिखा तबका दूसरी कौमों से ज़्यादा और आला अहदों पर फाइज है। जिस भी दोस्त को खुदा ने आला दर्जे पर फाइज किया, इसे चाहे कि वो अपने कौम के अफराद को मुस्तहकम और पायदार बनाने में अहम किरदार अदा करे ताकि मुस्तक़बिल में आपके हाथ मज़ीद मजबूत हों। मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूँ कि हमारा किसी से कोई इख्तलाफ नहीं, हर ग्रुप के लोग सिंध शेख अलायंस में शामिल हो सकते हैं। अपनी और अपनी कौम की खिदमत के लिए हमारे दरवाजे हर शेख कौम के लिए खुले हैं। मटियारी से रिपोर्ट राना नदीम। अलाउद्दीन धामरा पहवर की रहनुमाई में पहवर वेलफेयर एसोसिएशन सिंध का इजलास बर्शाह सर्किट हाउस में मुनक्कद हुआ। पहवर वेलफेयर एसोसिएशन सिंध के सरपरस्त आला सरदार मीर फात खान पहवर ने खसूसी शिरकत की। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे ज़िला मटियारी के राना नदीम। जी राना नदीम, हमें आगाह कीजिएगा, क्या रिपोर्ट है आपके पास? जी, मैं आपको बताता चलूं कि बर्शाह सर्किट हाउस में अलाउद्दीन धामरा पहवर की रहनुमाई में पहवर वेलफेयर एसोसिएशन सिंध का इजलास बर्शाह सर्किट हाउस में मुनक्कद हुआ। पहवर वेलफेयर एसोसिएशन सिंध के सरपरस्त आला मीर फाहद खान पहवर ने खसूसी शिरकत की, जहां पर मरकजी काबीना के ओहदों में कुछ रद्दबदल करके ओहदों का ऐलान कर दिया गया, जिसमें सदर शमसुद्दीन पहवर, सीनियर नायब सदर अलाउद्दीन धामरा पहवर, नायब सदर लाल जान पहवर, जनरल सेक्रेटरी एडवोकेट नूर मुस्तफ़ा पहवर, डिप्टी सेक्रेटरी शौकत अली पहवर, जॉइंट सेक्रेटरी दिलावर हुसैन पहवर, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी बशीर अहमद पहवर, खजांची प्यार अली पहवर, राब्ता सेक्रेटरी आजम रजा पहवर, ऑफिस सेक्रेटरी अब्दुल्ला धामरा पहवर और मशावरती काउंसिल मेंबरान बख्श अली पहवर, हाजी खुदा बख्श पहवर, अब्दुल गफूर पहवर, अनवर अली पहवर, DSP खुदा बख्श पहवर। मरकजी काबीना की मंजूरी सरपरस्त आला सरदार मीर फाद खान ने दे दी। पहवर वेलफेयर एसोसिएशन के सरपरस्त आला सरदार मीर फाद खान पहवर ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, पहवर वेलफेयर एसोसिएशन पूरे पाकिस्तान बिलखसूस सिंध में अपने नौजवानों की आला तालीम व रोज़गार के लिए काम कर रही है। मेरे दरवाजे हमेशा इंसानियत की खिदमत, अपनी कौम तंजीम के लिए दिन रात खुले हुए हैं। हर मुश्किल वक्त में मैं अपनी तंजीम और नौजवानों के शाना बशाना मौजूद रहूँगा। जी, आप खबर शामिल करते बंगला गोगेरा से, जहां हमारा नुमाइंदा राशिद अली की रिपोर्ट के मुताबिक बंगला गोगेरा में दारे अरकम स्कूल गोगेरा कैंपस की सालाना तकमील हिफ्ज़ कुरान तकरीब रॉयल कैनेडियन मार्केट गोगेरा में मुनक्कद हुई, जिसमें 15 हफाज की दस्तारबंदी और दुपट्टा पोशी की गई। इस तकरीब में बच्चों ने हम्द नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकरीर और टैबलो पेश किए। तकरीब के मेहमान हुसूसी डॉक्टर मोहम्मद इमरान मिर्ज़ा, CEO हेड ऑफिस दारे अरकम स्कूल पाकिस्तान, राना तौसीफ रहमान खान, रीजनल डायरेक्टर दारे अरकम साहिवाल, रिजवान अहमद चौधरी, डायरेक्टर दारे अरकम ओकाड़ा, चौधरी खुरम इकबाल अराइन, डायरेक्टर दारे अरकम मलका खास बागपतन, राय रब नवाज साकब एडवोकेट, डॉक्टर हाफिज राय, मोहम्मद मंशा, वसीम अहमद हेडमास्टर, इमरान शहजाद हेडमास्टर, चौधरी इमरान हालक हेडमास्टर और दीगर मेहमान तशरीफ लाए। 12 बच्चों की दस्तारबंदी और 3 बच्चियों की दुपट्टा पोशी की गई। हिफ्ज़ करने वालों में अहमद मुश्ताक, मतीउर रहमान, सना रहमान, ज़ैन हैदर, रेहान सरफराज, अहमद शहजाद, अली हुज़ैफ़ा, टीपू सलीम, मोहम्मद फिजान, मोहम्मद रज़ा, उसामा इकबाल, मोहम्मद इब्राहिम, हाफिज़ा मेज़ा तौफीक, हाफिज़ा मुक़द्दस फ़ातिमा, हाफिज़ा फ़रत राज वली शामिल हैं। कारी अंसर खुर्शीद, कारी अंसर मुरसलीन और कारी इकराम ने बच्चों का आखिरी सबक सुना। हवास कराम के वालिदैन और इलाका भर से कसीर तादाद में मेहमानों ने शिरकत की और पुरतकल्लुफ़ मेहमान नवाजी की गई। आखिर में डायरेक्टर दारा कम स्कूल गोगेरा कैंपस राय मज़र इकबाल हलील एडवोकेट ने अख्तामी कलमात अदा किए और आने वाले तमाम मेहमानों का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। नंबर के रहायशी ठठा की अदालत में शादी करने के बाद अजहर गुपांग तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी जोजा के साथ डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब मलीर पहुंच गए। हमारी जान को ख़तरा है और हमें मौतमार धमकियां दे रहे हैं, हमें तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए और धमकी देने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। मज़ीद कराची से देखते हैं जुम्मन बताफ़ी की ये। कंबर की रायशी ठट्टा की अदालत में शादी करने के बाद तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी ज़ौजा के साथ डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब मलीर पहुंच गए। उन्होंने कहा कि हमारी जान को खतरा है और हमें मौत मार धमकियां दी जा रही हैं, तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए और धमकी देने वाले के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए।
अजहर गोपांग अपनी ज़ौजा मुर्ग गोपांग की हमरा डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब मलिर पहुंचकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और एहतजाज करते हुए साफियों को बताया कि मुर्ग गोपांग के साथ मेरी मंगनी हो चुकी थी और हम आपस में रिश्तेदार हैं। मुर्ग के घर वाले लालच में आकर दूसरी जगह जबरदस्ती शादी करवा रहे थे। इस अमल के खिलाफ मेरी मंगेतर मुर्ग गोपांग अपने घर से निकलकर मेरे पास आई और हम दोनों ने ठट्टा की अदालत में 21 जनवरी 2025 को निकाह किया है, जिसके बाद मेरे ज़ौजा के रिश्तेदार अकबर गोपांग, राजा गोपांग, महमूद गोपांग और माजिद गोपांग हमारी जान के दुश्मन बन गए हैं और हमें मेरी ज़ौजा मुर्ग गोपांग को अगवा का कंबर थाने में झूठा मुकदमा भी दर्ज करवाया है और जान से मारने की धमकियां भी दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारी जान को खतरा है, जिसकी वजह से हम दरपदरी वाली जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, वजीर दाखिला सिंध, आईजी सिंध, एसएसपी कंबर को अपील करते हुए कहा कि धमकियां देने वाले के खिलाफ कार्रवाई की जाए और हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। कैमरा टीम के साथ जमन पिताफिया, न्यूज़ कराची। खबर शामिल करते हैं अमेरिका से। पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी की मुमताज़ समाजी कारोबारी शख्सियत और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी USA के नायब सदर न्यूयॉर्क में सफदर हुमायूं कुरैशी को गवर्नर पंजाब के साहबजादे सरदार फैज़ान हैदर के एजाज़ में इस्तकबालिया। न्यूयॉर्क उर्दू न्यूज़ पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी न्यूयॉर्क की मारूफ सियासी समाजी कारोबारी शख्सियत और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी USA के सीनियर नायब सदर सफदर हुमायूं कुरैशी की जानिब से अमेरिका के दौरे पर आए हुए गवर्नर पंजाब के साहबजादे सरदार फैज़ान हैदर के एजाज़ में अज़ीमुश्शान इस्तकबालिया दिया गया। फैज़ान हैदर चौधरी सतार के हमरा इस्तकबालिया में शिरकत के लिए पहुंचे तो हुमायूं सफदर कुरैशी ने PPUSA के सदर खालिद अवाद, न्यूयॉर्क के सदर जफर चट्टा समेत दीगर साथियों के साथ इनका पुरतपाक इस्तकबाल किया, फूल पेश किए और खुशामदीद कहा। हुमायूं सफदर कुरैशी के इस्तकबालिया में पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी की मुख्तलिफ शोबाह ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली अहम शख्सियात सैयद तसव्वुर अल हसन शाह गिलानी, बशीर कमर, खालिद अवान सदर PP अमरीका, जफर चट्टा सदर PP न्यूयॉर्क, हुमायूं शबीर सदर पाकवोली, उज़दार डार समेत दीगर ने शिरकत की। अतीक कादरी ने तिलावत कलाम मजीद और बारगाह रिसालत में हदिया अकीदत पेश करके तकरीब का आगाज़ किया। हानेवाल कब्जा माफिया की खुली धमकियां, मौजूद शहरियों को जान से मारने की वार्निंग। जिशान हालत बाबू, ब्यूरो चीफ ऑन न्यूज़ हानेवाल की रिपोर्ट के मुताबिक हानेवाल में कब्जा ग्रुप की दीदा दिलेरी अरूज पर पहुंच गई। मौजूद शहरियों को जान से मारने की धमकियां दी जाने लगी। मुतासरा शहरी ने DPO, RPO, IG पंजाब और वज़ीर पंजाब से फौरी नोटिस लेने और इंसाफ फराहम करने का मुतालबा कर दिया। ज़राए के मुताबिक कब्जा ग्रुप के अफराद ने न सिर्फ शहरी को हरासा किया बल्कि इसे जान से मारने की धमकी भी दी, जिससे शहरी में शदीद खौफ व हरास फैल गया। मुतासरा शहरी का कहना है कि अगर फौरी तौर पर कार्रवाई न की गई तो कोई बड़ा सानहा रोनमा हो सकता है। वाला से रिपोर्ट कर रहे हैं हमारा नुमाइंदा ऑन न्यूज़ सैयद ओन हुसैन हमदानी। योम यकजहती कश्मीर रैली म्यूनसिपल कमेटी से योम यकजहती कश्मीर रैली का इनेकाद किया गया। रैली की क़यादत असिस्टेंट कमिश्नर आरिफ वाला के ज़ेर क़यादत किया गया। रैली ने मुख्तलिफ बाज़ारों में चक्कर लगाए और कश्मीरियों के हक नारेबाजी की। रैली के लिए शुरा ने हाथों में फ्लैक्स और प्ले कार्ड उठा रखे थे। रैली के शुरा ने जना चौक में शुरा से खिताब किया। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।